10th point, when an asset is taken over by any liability or creditors. Any assets taken over by creditor or any liability, then what is to be done? What entry is to be passed? यानी कोई असेट्स को अगर कोई क्रेडिटर ले लेता है, गुड मॉर्निंग सुमित, तो अपन को क्या एंट्री करना? When any assets is taken over by any creditor or any liability, no entry is to be passed. Why no entry is to be passed? First, furniture of rupees 10,000 taken over by creditor of rupees 11,000. 11,000 के क्रेडिटर ने 10,000 रुपए के फर्नीचर को ले लिया. क्लियर? फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 taken by creditor at rupees 11,000. There are two parts in this question. First, furniture of rupees 10,000 taken by the creditor of 11,000. क्रेडिटर 11,000 के क्रेडिटर में फुल सेटलमेंट में, इन फुल सेटलमेंट, यानी अब 11,000 जो मांगता था उसको अब कुछ भी नहीं देना पड़ेगा. इसका मतलब पहला पार्ट, फर्नीचर, कितने का फर्नीचर था? 10,000 में हमने ट्रांसफर किया रिलाइजेशन अकाउंट में. टेकन बाय द क्रेडिटर एट व्हाट वैल्यू? 10,000. 10,000 का फर्नीचर एक तरह से हमारे यहां से 10,000 में बिक गया. अगर इस फर्नीचर को 10,000 में अपन ने सेल करके पैसे दिए होते क्रेडिटर को, तो अपन क्या एंट्री करते? पहले फर्नीचर का पैसा आने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अमाउंट रुपीज 10,000. अब क्रेडिटर को पेमेंट किया अपन ने, मांगता तो 11,000 है पर पेमेंट कितना जा रहा है हमारे यहां से? 10,000. तो एंट्री क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000. यानी 11,000 के क्रेडिटर को 10,000 में देके उसका हिसाब पूरा कर दिया. अब देखो इस दोनों एंट्री में क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैंसिल. रियलाइजेशन क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट, कैंसिल. सो नो एंट्री इज टू बी पास्ड व्हेन by the liabilities or creditor. Which you want to ask regarding this? क्लियर है बात? अब आ जाओ क्वेश्चन का, ये चैप्टर का 8.48 पेज नंबर जो आज मैंने व्हाट्सएप किया उसका पहला पेज. लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 sold for 3 lakh through a broker who charged 2% commission on the deal. Journalize the transaction at the time of dissolution of the firm. Yes. All of first, all the book value of assets transferred to the realization account. सबसे पहले सारी assets को हम ट्रांसफर करते हैं realization account. Then first we have transfer book land and building to realization. Then entry is realization account debit to land and building. What is the book value? 1,60,000. देखो अपन ने पहला ही पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी अपन असेट ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स. ये हो गया ट्रांसफर. व्हेन असेट्स इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कंसर्निंग असेट्स अकाउंट विल बी क्लोज्ड. ये बात क्लियर है पहले? Now that assets sold for rupees 3 lakh and 2% commission we have given to the broker. Then selling price is 3 lakh less 2%. 2% is 6,000. Remaining is 2,94,000. 2,94,000 we have received.
What entry is to be passed for the sale of assets? Entry is cash or bank account debit to realization. What is the selling net selling price? 2,94,000. देखो एक बार पहले सबसे आसान वाला पॉइंट था, ये क्लियर है पहले अपना। हटा दूं सारा? Second, pass journal entries in the following cases. First, realization expenses 1500. Nothing has given, who has paid. Then it is assumed that realization expenses has been paid by the firm. फर्म ने पे किया है, तो एंट्री क्या करें? देखो अपन ने 6 का पहला पॉइंट ए, पेड बाय द फर्म, to cash. Then entry is realization account debit to cash 1500 and 1500. Next, realization expenses 600 paid by the Mohan, one of the partner. To Mohan's capital. Entry is realization account debit to Mohan, Mohan's capital 620, 600. Third, Mohan, one of the partners of the firm, was asked to look into the resolution of the firm, for which he was allowed a commission rupees 2000. 6 पॉइंट का सी वाला पॉइंट देखो, 6 नंबर उसका सी पॉइंट देखो, मैंने वहां पर लिखा रखा सी के अंदर पहला पॉइंट, कमीशन और रेम्युनरेशन अलाउड टू द पार्टनर. What is given for the commission or remuneration? To such partner, capital. And there is partner Mohan. Then entry is realization account debit to Mohan's capital 2000. Fourth, motor car book value 50,000 taken by the creditor at 40,000 in settlement. Now, taken by the creditor. When assets is taken over by any creditor, no entry is to be passed. तो फिर अपन उसके लिए कोई एंट्री नहीं करते. Is it clear? In fourth point, no entry is to be passed. अब नो एंट्री क्यों है, लिखना पड़ेगा. Assets is taken over by the creditor, so there is no need to pass any entry. करो कंप्लीट. हो गया?
थर्ड, realization expenses 15,000 were to be made by the Rahul, a partner, but paid by the firm. इसका क्या मतलब, कौन सा पॉइंट है रिलायशन एक्सपेंसेस का, ए, बी और सी? सी वाला पॉइंट है। इसमें लिखा है कि रिलेशन एक्सपेंसेस 15,000 वर टू बी मेड, मींस दिस एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय राहुल। तो पहले तो ये सी वाला पॉइंट है कि ये एक्सपेंसेस किसको बियर करना था, राहुल। अब देखो सी वाले पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट तो है कमीशन और रेम्युनरेशन का, दूसरा पॉइंट है रिलेशन एक्सपेंसेस का, उसके अंदर भी दो पॉइंट है, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। कौन सा पॉइंट है ये, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर? अब देखो पेड बाय फर्म में लिखा है सच पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी किसकी है, राहुल की। पे कौन कर रहा है, फर्म। देन दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, देन एंट्री इज राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 15,000 because it was the liability of Rahul but paid by the firm. Ramesh, a partner, was paid remuneration 25 expenses. कौन सा पॉइंट है, ए, बी और सी? सी रेमुनरेशन वाला पॉइंट, एक ही करना है, एक्सपेंसेस तो दे ही नहीं रखा अपने पास, अपन को तो रेमुनरेशन की एंट्री करना है। बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश 5,000। नेक्स्ट, Anuj, a partner, was paid remuneration 20,000. He was to meet all the expenses. Firm paid rupees 5,000. कौन सा पार्ट है, एबीसी? सीधा एक ही देखना अपन को, सी पॉइंट कब है, या तो लिखा होगा कमीशन, या लिखा होगा रेमुनरेशन, या लिखा होगा रिलेशन एक्सपेंसेस टू बी मेड बाय सच पार्टनर और मेड बाय द पार्टनर। सी वाला पॉइंट है। पहले कमीशन की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज, कितना कमीशन देना है, रेमुनरेशन देना है 20,000 एंड पेड बाय द फर्म, फर्म पेड रुपीज 5,000 एक्सपेंसेस। ये बियर किसको करना था, एक्सपेंसेस, और पे कौन कर रहा है? तो सी के अंदर ही देखो बी वाला पॉइंट, सिक्स में, तो सी वाले पॉइंट में देखो सेकंड पार्ट रिलेशन एक्सपेंसेस वाला, पेड बाय फर्म, देन एंट्री इज अनुज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। एक बार देखो ये तीन क्वेश्चन क्लियर है क्या? पहले क्वेश्चन नंबर 4, what is given, relation expenses 10,000 paid by the firm on the behalf of Alok, a partner with whom
It was agreed 7,500. पढ़ो इस लाइन को दोबारा। हाँ बोलो। हाँ 25 कर लो। Expenses 10,000 paid by the firm, पहला पार्ट, for which partner आलोक agreed at 7,500। हमने ये कहा कि आलोक को 7,500 हम रेमुनरेशन या कमीशन देंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री तो उसको रेमुनरेशन या कमीशन देने की एंट्री, इसमें लिखा है एग्रीड। तो पहली एंट्री ये सेम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक, कितना देंगे 7,500 एग्रीड। अब एक्सपेंसेस आलोक के ब्याह पे फर्म पेमेंट करिए कितना, तो एंट्री होगी आलोक अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, व्हाट वी हैव पेड 10,000। B part, relation expenses 5,000. It was agreed that firm will pay 2,000 balance by रविंदर ए पार्टनर। कुल 5,000 रुपए पे कर रहे हैं, आधा यानी 2,000 तो फर्म पे कर रही है, बाकी रविंदर पे कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट है, सी, ए और बी या ए और बी? नहीं, वापस पढ़ो। सी पॉइंट तभी होगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा रेमुनरेशन और कमीशन अलाउड टू द पार्टनर वन एंड रिलेशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय सच पार्टनर, ये लिखा होगा तो सी पॉइंट। ये ए और बी दोनों पॉइंट है। देखो इधर बी वाले पॉइंट में सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश और बैंक, और टू रविंदर, total amount paid 5,000, 2,000 by the firm and 3,000 by Ravinder। करें आगे। सी पॉइंट, डिजोलेशन एक्सपेंसेस मींस रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय अमित ए पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। कौन सा पॉइंट है, ए, बी या सी? बिल्कुल सही है, बी पॉइंट। पेमेंट तो करना है फर्म को, लेकिन कर कौन रहा है, पार्टनर। तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा है, अमित, अमाउंट इज 10,000।
सबका हो गया यहां तक? नेक्स्ट, creditors worth rupees 85,000 accepted 40,000 cash, investment 43,000 in full settlement of their claim. हाँ भाई, creditor 85,000, we have paid 40,000 in cash and investment 43,000. Again, when a creditor takes over any assets, no entry is to be passed. There are two parts, one is cash, another is investment. For the investment, there should not be any journal entry, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो असेट्स है, उसको लेने की कोई एंट्री नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम ट्रांसफर कर चुके रिलायशन अकाउंट में. रिमेनिंग अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 5, 40,000 पेड इन कैश. क्या एंट्री करें हम? ऐश्वर्या पाराशर. हाँ, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000. या लिखो आगे, फॉर द इन्वेस्टमेंट no entry is to be passed. उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी. हाँ, पर कैश को अपन ट्रांसफर नहीं करते ना रिलायशन अकाउंट में, इसलिए अपन उसकी एंट्री करते हैं. इन्वेस्टमेंट तो अपन ट्रांसफर कर चुके रिलायशन अकाउंट में, तो इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर हो गया, क्रेडिटर्स भी ट्रांसफर हो गया, इसलिए अपन उन दोनों की एंट्री अगर करेंगे तो उल्टी हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी एंट्री, इसलिए अपन उसकी एंट्री. नेक्स्ट, creditor were 16,000, accepted machinery 18,000 in settlement of their claim. दिव्या, क्या एंट्री करें? नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं, क्योंकि क्रेडिटर किसी असेट्स को टेक ओवर कर रहा है, कोई एंट्री नहीं होगी. फिर देखा क्रेडिटर्स वर 90,000, द 1,20,000, पेड कैश टू द फर्म 30,000. अब 90,000 का क्रेडिटर था, सबसे पहले उसने बिल्डिंग को एक्सेप्ट कर लिया. नो एंट्री इज टू बी पास्ड फॉर द बिल्डिंग एक्सेप्टेड, बट रिमेनिंग अमाउंट दे हैव पेड टू द फर्म. तो फर्म को पैसा आ रहा है, फर्म के यहां से पैसा जा रहा है, आ रहा है. तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कितना अमाउंट पे कर रहा है? 30,000. 30,000. ये क्लियर है तीनों एंट्री? क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम पे क्वेश्चन आया जो 6 नंबर का आया, 6 के अंदर 6 एंट्री पूछी जाती है. ठीक है, निकालो नेक्स्ट. सेल ऑफ असेट्स, क्वेश्चन नंबर 6. Sale of assets 50,000. Assets sold for 50,000. Yes. No, 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 no. कैश और बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, पैसा आ रहा है.
सेल कर रहे हैं एसेट्स को, पैसा आ रहा है, आने की एंट्री कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सेल ऑफ एसेट्स 50,000। बी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, it is just reverse of that entry. Realization amount rupees 10,000। अभी किसने कहा था लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट? नो assets is to be credited when there is sale, no liabilities is to be debited at the time of payment, because all the balances of assets and liabilities are transferred to the realization account, resulting closure of these account। सारे अकाउंट बंद हो जाते हैं, बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए उनका कोई एग्जिस्टेंस हमारे पास नहीं, तो हम कोई एंट्री नहीं करते, तो उनका नाम नहीं लिखते। एंट्री तो करते हैं लेकिन उनका नाम नहीं लिखते। नेक्स्ट, 5% commission allowed to the partner X on the sale of assets. We have sold out assets for 50,000 and its 5% is 2,500. Commission allowed to the partner X. This is 6th point. Yes. Realization account debit to X 2,500 and 2,500. Last point, realization expenses 15,000. Firm had agreed with Amrit to reimburse him 10,000. हम तो देंगे उसको 10,000 और नहीं लिखा है कि रिलायशन एक्सपेंसेस किसने पे किया, तो ये लायबिलिटी किसकी थी? 15,000 की। पढ़ो वापस। हमने एक पार्टनर अमृत को ये ठेका दिया कि तेरे को ये काम करना है, 10,000 पे देंगे, देन इट इज अ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर अमृत। ठीक, तो पहले तो अपन को कमीशन और रेम्युनरेशन के एंट्री, realization account debit to Amrit 10,000. Now realization expenses paid, it has not given paid by the firm, then it is assumed that liability of the Amrit paid by the Amrit, उसी की लायबिलिटी है तो पे कौन करेगा? वही करेगा, तो हम ऐसा मानते हैं कि उसने पे किया। तो ये सी वाले पॉइंट में देखो, रिलेशन एक्सपेंसेस का सेकंड पार्ट पेड बाय सच पार्टनर, नो एंट्री टू बी पास्ड फॉर द 15,000। देखो एक बार यहां तक क्लियर है क्या? पहले नेक्स्ट, Z, a debtor whose account 6,000 was written off as bad debt earlier, paid 60% of the amount। एक डेटर है जिसका अकाउंट क्लोज हो गया, बैड डेट हो गया, अब उसने 60%, 6,000 का 60% पे कर दिया, 3,600। दिमाग में केवल एक ही बात रखना है, कितना कैश आ रहा है हमारे पास, और कैश आने की एंट्री हमेशा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा कहां से आएगा? हमेशा रिलायशन अकाउंट से, और जो पेमेंट करेंगे वो भी रिलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले पैसा आने की एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट, कितना आ रहा है? 3,600। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000, रिलाइज 150%, तो कितना पैसा आएगा? 15,000। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 15,000,
पैसा आने की एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 10,000 या 15,000? 15,000 कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। Realization expenses 10,000. Firm had agreed with Krishna, a partner, to reimburse him 7,500. अभी थोड़ी देर पहले किया अपन। 7,500 रिimburse करेंगे तो पहली एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। नहीं दे रखा है एक्सपेंसेस, किसने पे किया है? इट मींस पार्टनर हैज पेड एंड इट वाज द लायबिलिटी ऑफ दैट पार्टनर। क्लियर है ये बात? देखो पहले यहां तक क्लियर है क्या सारा? क्वेश्चन नंबर 7, यहां तक क्लियर है पहले सबका? 5 journal entries for the following. A. Loan of 10,000 advanced by a partner to the firm was refunded. क्या करते हैं जब लोन की एंट्री होती है? लोन दे रखा होता पार्टनर का। देखो मैंने 5th वाला पॉइंट लिखा है, पार्टनर्स लोन। यस, पार्टनर का नाम नहीं दे रखा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। व्हाट वी हैव रिफंडेड 10,000 फर्स्ट। सेकंड, as a partner takes over an unrecorded assets typewriter 300, क्या करें? खुशी पांडे, बिल्कुल ठीक है। एक्स इज रिसीवर। यहां पर कंफ्यूजन होता है, अपन कहते हैं कि नो एंट्री इज टू बी पास्ड। वो नो एंट्री का कंसेप्ट जो है केवल लायबिलिटीज के लिए है, पार्टनर के लिए नहीं है। बड़ा अपन ने थर्ड वाला पॉइंट देखो, उस थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर करता है, पार्टनर्स इज रिसीवर। एक्स अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन 300। थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस डेबिट पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस क्या होता है? नहीं होता क्या है ये? accumulated loss. Always it is divided amongst partner in their profit sharing ratio. Entry is X account debit, Y account debit, Z account debit to P&L in profit sharing ratio 30,000. Ratio is not given. 10,000, 10,000 and 10,000. असेट रियलाइज 1,25,000। पैसा आ रहा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,25,000। फिर Y who undertakes to carry out the resolution proceedings paid 2,000 for the same. Means remuneration is allowed to the partner. Entry realization account debit to partner Y and amount paid 2,000.
और लास्ट creditor are paid 28,000 in full settlement of their claim 30,000. क्रेडिटर्स को नेट पेमेंट कितना जा रहा है? 28। हाँ, कौन से वाले में? कौन सा सेवंथ का? ए पॉइंट डिजोलेशन प्रोसीडिंग इज पेड 2,000 फॉर द सेम। हम उसको क्या मिल गया? हम तो क्या करते हैं उसकी, देखो समझो इसको, हम क्या करते हैं उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। लास्ट में जब कैपिटल का हिसाब होता है ना, तब उसको उतना अमाउंट पे आउट हो जाता है। हम हमेशा उसके क्रेडिट कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या करते हैं अपन? उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ऐसे। अब 28,000 पेड टू क्रेडिटर्स, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 28,000।